आरंभ करबा एमओडी 10 ब्लॉक 3 ର ପ୍ରଥମ ଏକକ ବିଘଟନ ସମାଲୋଚନାର ହେଲା। ବିଘଟନ କ'ଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା। ବିଘଟନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଘଟନ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତା ବିଘଟନର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସଂରଚନା ସୂଚକ ଓ ଶବ୍ଦଲେଖ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ସଂରଚନାବାଦୀ ମତବାଦ ଆଉ ବିଘଟନବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଘଟନବାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଡେରିଦାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ନୂତନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ବହିସ୍ଥ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଧଳା, କଳା ପ୍ରଭୃତି ଦୁଇ ବିପରୀତମୁଖୀ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାର ଏକ ତାର୍କିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଘଟନବାଦ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ମାନବ ସମାଜର ପରଖିବାର ସୂତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାରଧାରାର ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହି ବିଘଟନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଶିଖିବା ବିଘଟନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଭଲସେ ବୁଝିବେ। ବିଘଟନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଆଉ ବିଘଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଖେଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ଅପସାରିତ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶରେ ଆସିବ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି 1960 ପରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛି। ଉଦାର ମାନବବାଦ ଚିନ୍ତା ଜଗତକୁ ନିଃସୃତ ହେବା ପରେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ସମାଲୋଚନା ଓ ନାରୀବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ନବ ସମାଲୋଚନା, ସଂରଚନାବାଦୀ ଓ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଭାଷା, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ବିଘଟିତ ଘଟଣାର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଉପରୋକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପଠନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାକ୍ ଡେରିଦା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏଟାକୁ କରିବା। ପଠନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ ଜାକ୍ ଡେରିଦା। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବିନିର୍ମାଣ ବା ବିଘଟନ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଥାଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ସଂରଚନାବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ ହେଲା। ସଂରଚନାବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁଅର ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ବା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାବ। ଭାବ କ'ଣ, ଯାହା ମନ ଭିତରେ ରେଖାପାତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁଅର ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବ। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ବା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ। ଭାବ ହେଉଛି ଯାହା ମନ ଭିତରେ ରେଖାପାତ କରେ। ପ୍ରଥମଟିକୁ ଆମେ ସୂଚକ କହିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଆମେ କହୁ ସୂଚିତ। ପ୍ରଥମକୁ ଆମେ ସୂଚକ କହିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଆମେ ସୂଚିତ କହୁ। ପାହାଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ପାହାଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଆମ ଆଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସେ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଭାଷା ସହିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଭାଷାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଗଠନରେ ଏହାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସସୁଅରଙ୍କର ଭାଷାରେ ଐତିହାସିକ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସସୁଅରଙ୍କ ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସସୁଅରଙ୍କର ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିର ଅନୁଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାକ୍ ଡେରିଦା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି।
तांकर मतरे कौनसी भौतिक स्थिति वस्तु को जानिबा सर्वदा प्राग ज्ञान उपरे मध्य निर्भरशील जहाकू से केंद्र बोली कहंती। किंतु केंद्र बाहर जे आउ केते गुडी सत्य लुकायित होई रही थाए ताहा अनेक समय साहित्य समालोचना उपेक्षित होई थाए। तेणु केंद्र प्रति प्रश्न करबा विघटनर मूल कथा। तेणु उच्च नीच बा उपरे ऊपर सोपान और निम्न सोपान को अदल बदल कर खोरा काम को जोगाई देछंती डेरिडा। परस्पर दुई विरोधी धारणा को भित्ति करी दुई एटा बुझंतु एटा कोन हेची एटा माने जो अछि विषय प्रोफेसर जोटा पढा होची ए जिंसा खाली ध्यान सुनु देखिबे समालोचना कोन आपनकर बेसी नॉलेज आपन आसी जीवो हला देखंतु। तेणु उच्च नीच बा ऊपर सोपान और निम्न सोपान को अदल बदल करिवार खोरा काम को जोगाइछंती डेरिडा। परस्पर दुई विरोधी धारणा को भित्ति करी दुई भिन्न आदर्शवाद मध्य प्रतिष्ठा होता है। भल मंद नारी पुरुष क्षणिक शाश्वत पर दुई विपरीतमुखी जोड़ा को भित्ति करी राजनीतिक आदर्श उत्पत्ति बोले से जुक्ति मध्य करुछंती। साहित्य को उच्च और समालोचना को गौण बोले जदि आमे कहू तेबे उच्च और गौणर स्थान परिवर्तन कले आमे समालोचना को उच्च और साहित्य को गौण बोली मध्य कहि परिबा। डेरिडा एही वितर्कित प्रसंग पर मध्य निजर मत रखिछंती हला। तापरे एबे हमें मेन पाठ को जिबा विघटन संज्ञा और स्वरूप लघु सिनासिबटा जदि ऑफलाइन एग्जाम हुए वेरी इंपोर्टेंट हला। विघटन संज्ञा और स्वरूप कोन अछि ना पारंपरिक साहित्य समालोचना को समकालीन तत्वकार माने उदार मानववाद भाबरे चिन्हट करिथांती हला। पारंपरिक साहित्य अंडरलाइन करबे पारंपरिक साहित्य समालोचना को समकालीन तत्वकार माने उदार मानववाद भावे चिन्हट करिथांती। उदारर अर्थ होची राजनैतिक प्रतिबद्धता थारु दूरता रक्षा करबा और मानवीय स्वरूप को एक सर्वकालीन और सार्वजनीन स्तर में कल्पना करबा। उदारर अर्थ कोन होची ना उदारर अर्थ होची राजनैतिक प्रतिबद्धता थारु दूरता रक्षा करबा एवं ता सहित मानवीय स्वरूप को एक सार्वकालीन और सार्वजनीन स्तर में कल्पना करबा। मानववाद मनुष्य प्रकृति को एक स्थिर अपरिवर्तनीय एकक हिसाब से विचार करे। एही प्रकार विचार श्रेष्ठ साहित्य कृति गुड़िकरे व्यक्त होइथाय बोली उदार मानववाद माने विश्वास करती। जो समालोचना अणमार्क्सीय अण नारीवाद बा अण संरचनावादी जो समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसार नुहे से समालोचना को उदार मानववादी समालोचना कहा जाए। कौन ना जो समालोचना अणमार्क्सीय अंडरलाइन करेंगे अण नारीवाद बा अण संरचनावादी जो समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसार नुहे से समालोचना को उदार मानववादी समालोचना बोली कहा जाए। हमको मन रखा पड़ो कौन ना उदार मानववादी समालोचना क्या कहा जाए जो समालोचना अणमार्क्सीय अण नारीवाद बा अण संरचनावादी जो समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसार नुहे से समालोचना को उदार मानववादी समालोचना कहा जाए। क्लियर। विगत शताब्दीर मध्यकाल खंडरे मार्क्स समालोचना और मनस्तात्विक समालोचना प्राधान्य लाभ करथिला। उदार मानववादी चिंतन को आहत करी 1960 दशक में भाषातात्विक समालोचना एवं सही दशक शेष भाग को नारीवादी समालोचना आदृत्य लाभ करथिला। 1970 ब्रिटेन और अमेरिकार नव समालोचना बा न्यू क्रिटिसिज्म फ्रांस रु आनीत और संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी तत्व द्वारा पृष्ठ होइथिला। इतिहास और प्रसंग अपेक्षा भाषा और दर्शन थिला समालोचनार मुख्य उपजीव्य। किंतु 1980 पर पुनश्च इतिहास राजनीति और सामाजिक प्रसंग आड़ को समालोचक दृष्टि पुनरावर्तन घटला। तापरे से जन्म नेला नव ऐतिहासिकतावाद जोटा कि अमेरिका रे एवं सांस्कृतिक वस्तुवाद इंग्लैंड रे जन्म नेथिला। एथिरे संरचनावाद उत्तर संरचनावादी तत्वर मिश्रित प्रयोग सहित साहित्य अध्ययन और इतिहास अध्ययन संतुलित परिलिखित हुए। एठारे ए समस्त तत्व और पद्धति को उद्भूत केतोटी निष्कर्ष रे अवतरण मध्य करा जाय पारे। जेमिति पीटर बारी कर तांका भाषा रे कोन अछि ना राजनीति सर्वव्यापी सॉरी भाषा वास्तवतार सूत्रधर सत्य आपेक्षिक अर्थ घटना निर्भर
और मानवीय प्राकृतिक कल्पना। प्रश्न आसिब पीटर बारिंगर भाषा रे समस्त तत्व और पद्धति को उद्भूत केतोटी निष्कर्ष अवतारण नहीं प्रश्न छाड़ एटा केवल विघटन संज्ञा स्वरूप आसिले ही लंग क्वेश्चन है प्रश्न है परिबनी हला संज्ञा जदि आसे ताहले एई जिंसटा को सेटे ऐड करा हम कोन ना समस्त तत्व और पद्धति को उद्भूत केतोटी निष्कर्ष अवतारण करा जाय पारे पीटर बारिंगर भाषा रे राजनीति पांचटी भाषा माने मत दिखाई राजनीति सर्वव्यापी भाषा वास्तवतार सूत्रधर सत्य आपेक्षिक अर्थ घटना निर्भर मानवीय प्रकृति एक कल्पना यही पंच निष्कर्ष यही पंच निष्कर्ष समकालीन साहित्य तत्व को बुझिया विशेष सहायक होता संरचनावाद हो बा उत्तर संरचनावाद हो कौन ये जो पांचटी निष्कर्ष समकालीन साहित्य अच्छी कार पीटर बारिंगर भाषा रे यही पांचटी निष्कर्ष समकालीन साहित्य तत्व को बुझा माने कौन विशेष सहायक होता है संरचनावाद हो बा उत्तर संरचनावाद हो संरचनावाद साहित्य तथा संस्कृतिर अध्ययन भाषा गठन अंश विशेष मानकर पारस्पद उपरे गुरुत्व देथिले हला प्रतिटी कृति भितर थिबा उपादान सेमानकर पेज नंबर 6 सेमानक भितर थिबा संबंध अनुसंधान करी बृहत्तर प्रेक्षापट रे कृतिर श्रृंखला और सहंतिर आनयन मध्य करथिला किंतु उत्तर संरचनावादी माने एई जो चिंतन ताकर थिला ए चिंतन और पद्धति एई चिंतन और पद्धति मोहर से माने मुक्त हो जाथिले दर्शन और तत्व जगत रे मुक्तिकामी आंदोलन पथ से उन्मुक्त करथिले उत्तर संरचनावाद मुख्य चिंतानायक हेले जाक डेरिडा हला अंडरलाइन करबेटा को उत्तर संरचनावाद मुख्य चिंतानायक के थिले जाक डेरिडा शॉर्ट क्वेश्चन बेस पर से आरंभ करथिबा तात्विक दृष्टिभंगी जेटा कि विघटन विनिर्माण और प्रतिविन्यास एक अद्भुतपूर्व गठन रीति बा अध्ययन पद्धति डेरिडा 1930 मसीहा जुलाई 15 रे आल्जियर्स एक यहूदी परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले एटा अंडरलाइन करिवे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेरिडा केबे और केउठी जन्म ग्रहण करथिले डेरिडा 1930 मसीहा जुलाई मास 15 तारिख रे आल्जियर्स एक यहूदी परिवार रे डेरिडा जन्म ग्रहण करथिले विद्यालय को जीवार प्रथम दिन ही तांको विद्यालय रो बहिष्कृत करा जायथिला फास्ट दिन जिते जाते प्रथम दिन विद्यालय जाते से दिन ही बहिष्कृत कर कारण गोटे विद्यालय छात्र मान संख्या 7% ही यहूदी मान सीमित थिला से बड़का बहिष्कृत कर बाल्यकाल वैषम्यर शिकार होइथिबारु से हुए परिचय केन्द्र परिधि और क्षमता और विरोध आदि विषय अधिक सचेतन से होइथिले रूसो गाइड नीचे भालेरी और काम्यू आदि को घनिष्ठ भाव में पढ़ी रूसो गाइड नीचे भालेरी काम्यू आदि को से घनिष्ठ भाव में पढ़ी और प्यारिस रे दर्शन से अध्ययन करथिले परवर्ती काल रे कोन होइछि तांकर अध्यापना और फरासी बौद्धिक वातावरण नेतृत्व नेथिले एवं से नूतन ढंग रे पाश्चात्य दर्शन और चिंतन अनुधान मध्य करथिले समस्त दार्शनिक सिद्धांतर सठिकता को प्रश्न करथिले मध्य डेरिडा संरचनावाद साहित्य समालोचना और नृतत्व पाई जो वैज्ञानिक अनुशीलन भित्तिटी तैयारी थिला डेरिडा सही संरचनावाद दुर्बलता को उन्मोचित करथिले 1966 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख रे बाल्टीमोर रे जन्म हॉपकिंस विश्वविद्यालय अनुष्ठित एक संपादन रे से स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कर्स ऑफ ह्यूमन साइंस रे शीर्षक जो भाषण प्रदान करथिले ताहा थिला एक जुगांतकारी वक्तव्य एही संपादन रे पॉल डी मान रालो बार्थ जाक लांका आदि विशिष्ट फरासी चिंता नायक माने मध्य सेठे भाग नेथिले संरचनावाद आलोचना करबा तथा अमेरिका रे एही फरासी चिंतन परिचय पाइबा को जाई से संरचनावाद अंतर्निहित स्वविरोधी बीज गुटिकर प्रदर्शन मध्य करथिले सेहिठारे आरंभ होइतिला उत्तर संरचनावाद युग
एतिक आसीजिव संज्ञा रे संज्ञा और स्वरूप रे एतिक आसीजिव लॉन्ग क्वेश्चन हैला तापरे संरचना सूचक और शब्द खेल कौन अच्छी जानवा संरचना जोटा स्ट्रक्चर सूचक साइन आउ प्ले माने खेल तो यही संरचना बादर केतोटी विभाग अटे कोड़ा कोड़ा संरचना सूचक आउ प्ले जोटा स्ट्रक्चर साइन आउ प्ले एटा होची संरचना बादर केतोटी विभव अंडरलाइन करंतु एटा को संरचना बादर केतोटी विभव विभव अछि आ कोन कोन संरचना बादर तीनोटी विभव अछि स्ट्रक्चर साइन आ प्ले संरचना सूचक आ शब्द खेल हला संरचना बादर मुख्य नायक स्विट्जरलैंड अंडरलाइन करबे संरचना बादर मुख्य नायक स्विट्जरलैंड भाषा विज्ञानी फर्डिनांड डी ससुअर ही भाषा को सूचक मानकर एक सांगठनिक पद्धति रूप से विश्लेषण करथिले विशेष भाव में से कहते जे भाषा मुख्यतः शब्द मानकर द्वारा गठित शब्दर आलोचना ही भाषार आलोचना शब्दर आलोचना करने को ससुअर शब्दर दुईटी रूप आम आगे उन्मोचित करछन्ति गोटिए होची ध्वनिगत रूप पूर्व आम जो माने आलोचना फंडामेंटल आम पढ़ी कौन ना प्रथम होची ध्वनिगत रूप अन्यटी होची और अन्यटी धारणागत रूप एटा अंडरलाइन करेंगे शब्दर आलोचना करने को ससुअर शब्दर केतोटी रूप आगे उन्मोचन कर कौन कौन ना शब्दर आलोचना करने को ससुअर शब्दर दुईटी रूप आम आगे उन्मोचन कर गोटे हूँ ध्वनिगत रूप आ गोटे हूँ धारणागत रूप ध्वनिगत रूप हूँ जहाँ कान शुणुवा शब्द को ध्वनिगत रूप कह मन में भावुवा कथा को धारणागत रूप बोली कह जो भाव कह अर्थात ससुअर मतरे प्रथम हूँ संकेत बा सूचक है एवं अन्यटी हूँ सूचित यही जो सूचक और सूचित मध्य संपर्क अनिर्दिष्ट भाषार यही अनिर्दिष्टता आवश्यक स्वीकार्य यही अनिर्दिष्ट सत्य गोटे निर्दिष्ट संपर्क शाब्दिक उच्चारण और ताहा द्वारा सूचित अर्थ भाव को बांधि उपस्थापन करने भाषा विभिन्न गठन पद्धतिर आवश्यकता अनुभूत होता है भाषा मुख्यतः एक श्रवण पद्धति भाषा हूँ गोटे श्रवण पद्धति मान शुणिक मन रखा जाए शुणिबार गोटे ये तो प्रथम उच्चारण और तापर श्रवण भाषा देखा आप पढ़ाऊे मु कौन कर प्रथम मु उच्चारण कर मोर पाटर शब्द बाहर आपण मैंने शुणुंट तो प्रथम मु उच्चारण कली तापर श्रवण है तो उच्चारण श्रवण मध्य किछि समय अतिक्रांत हवा स्वाभाविक मु कहला पर मो पाटर जो साउंडटा बाहर जो ध्वनिटा निर्गत होउची कहवा उच्चारण करबा आ ध्वनि निर्गत हवा एतिके मध्य जहाले माने मिली माइक्रो सेकेंड रो फरक मध्य रहबो रोचे तो तेनु सूचक और सूचितर संपर्क एक क्रमिक संपर्क यही क्रमिकता किंतु गोटे चित्र देखा बेले ताहा संभव नुहे गोटे चित्र रे थिबा उपादान गुडिक सेमानकर भिन्नता को एक समय सूचित करि पारंती किंतु भाषार उच्चारण रे यही प्रक्रिया एक समय पर्याय बा क्रमिकतार अपेक्षा रखे चित्र रे अंकित गछटिए भावतु चित्र रे अंकित गोटे गछटिए देखिले आमे कोन होय ना पृथ्वी रे थिबा अनेक वास्तव गछर सादृश्य आमे अनुभव करू जे प्रकृति रे जिते सब पृथ्वी रे गछ उठे अछि प्राय ए गछ भलिया हेइथिबो भाबु जदी पिक्चर जे जाय हम माइंड रे किंतु गछ शब्द जो अछि से गछ शब्द रे कोनोसी गछ सदृश प्राकृतिक गुण न थाए यह केवल एक संकेत हला बा सूचक रूपे उच्चारित होइथाय ओडिया भाषा रे गछ को आमे पृथ्वी रे थिबा पत्र पुष्पमय एक भौतिक वस्तुर सूचक भाव रूपे आमे मानि नै छु बोली गछ शब्द सही अर्थ अवतरण करछि जो गछटा को आमे देखुचंती तार गछटा को आमे ता गछ बोली काहे को माने हम माइंड रे आगुरु से गछ ता गछ बोली नामकरण करा जाय छि काहे कि ना गछ पृथ्वी रे जो गछटा अछि जे आमे जे देखुचंती गछ से गछ रे पत्र अछि पुष्प फूल अछि फूल पुष्प फल मध्ये होछि जेहेतु से गोटे गछरे पत्र पुष्प फूल सब फल भी होछि तो सेडा को आमे गोटे संकेत बा सूचक रूपे आमे सॉरी पुष्पमय एक भौतिक वस्तुर सेडा जेते होछि तदन आमे ताको भौतिक वस्तुर सूचक रूपे मानि नै छु बोली गछ शब्द सही अर्थ आमे अवतरण करछु सही प्रसंग रे इराजी भाषाभाषी लोके ताको कोन कहते ट्री बोली कहते ट्री माने गछ
किंतु प्रकृत पक्षे गछ बा ट्री दुईटी कथन परंपरा मात्र सही जगह जदि अन्य किसी शब्द यदि कह जाता तेबे सही अन्य शब्द को मध्य व्यवहार करा जाउ थांता तेणु शशुरंकर मतरे गोटे शब्दर गुरुत्व सही शब्दर भाषार बलय भितर ही संभव बाह्य दुनियार वास्तव पदार्थ सहित शब्दर से भली किछि मेल मध्य नाही भाषा एवं स्वयं संपूर्ण पद्धति यही पद्धति भितर ही गोटे शब्दर अन्य शब्द सहित संपर्क प्रतिष्ठित होता है आपणर गठन धर्म बाहर कौन से एक निर्दिष्ट एकक सत्य बा वास्तवता को भाषा सूचित करें नाही भाषा निजे निजर वास्तवता तैयारी करे शब्द मानकर उच्चारण क्रम नहीं वाक्यटी मध्य अर्थ प्रकाश करे आउथर कह जाउछि शशुरंकर मतरे गोटे शब्दर गुरुत्व सही शब्दर भाषार बलय भितर ही समवाय शशुरंकर मतरे गोटे शब्दर गुरुत्व भल सब गोटे शब्दर गुरुत्व सही शब्द गोटे शब्दर गुरुत्व जो थिबो सही शब्दर जाहु शब्दटी थिबो जाहु शब्दटी जो कहा जिवो बा ये करा जिवो तो सही शब्दर गुरुत्व से जो शब्दर गुरुत्व सही शब्दर भाषार बलय भितर ही ताहा संभव होइताय बाह्य माने बाहर दुनियार वास्तव पदार्थ सहित शब्दर से भली किछि मेल नाही भाषा एवं स्वयं भाषा एक स्वयं संपूर्ण पद्धति यही पद्धति भितर ही गोटे शब्दर अन्य शब्द सहित संपर्क प्रतिष्ठित होता है आपणर गठन धर्म बाहर कौन एक निर्दिष्ट एकक सत्य बा वास्तवता को भाषा सूचित करें ना आपणर गठन धर्म बाहर निजर गठन धर्म बाहर कौन एक निर्दिष्ट एकक सत्य बा वास्तवता को भाषा सूचित करें ना भाषा निजे निजर वास्तवता तैयारी करे भलसे बुझंतु कहीं नेट रे सब एगुडी सब आसीजिवो हला भाषा निजे निजर वास्तवता तैयारी करे शब्द मानकर उच्चारण क्रमे नहीं वाक्यटीर अर्थ प्रकाश करथाय शब्द मानकर उच्चारण क्रमे नहीं वाक्यटीर अर्थ प्रकाश करिथाय वाक्य रे शब्द मानकर स्थान अर्थात पूर्व परिस्थिति बा गठन अनुसार सेमानकर जो संपर्क स्थापित हुए ताहा गोटे रक्षिक संपर्क वाक्य रे शब्द मानक स्थान अर्थात पूर्वापरि स्थिति बा गठन अनुसार सेमानकर जो संपर्क स्थापित हुए ताहा गोटे रक्षिक संपर्क एटा अंडरलाइन करंतु इंपोर्टेंट आस पर एटा है तापरे इराजी रे जोटा लेनर अछि बा हॉरिजॉन्टल संपर्क मध्य कहा जाय एटा भी अंडरलाइन करंतु भाषा तत्व रे ताहाको सिंटैग्मेटिक रिलेशन मध्य कहा जाय एटा मध्य अंडरलाइन करंतु त माने हमर इंपोर्टेंट आसी जो शब्द मानकर उच्चारण क्रमे नै वाक्यटे अर्थ प्रकाश करे नै भूल कहली वाक्य रो अंडरलाइन करंतु वाक्य रे शब्द मानक स्थान अर्थात पूर्व परिस्थिति बा गठन अनुसार मध्य कहा जाए तो अंडरलाइन करंतु हला हेडा को साइड रे इंपोर्टेंट दे दंदु आउ एक दृष्टि शब्द मानकर पारस्परिक संपर्क मध्य आलोचना मध्य करा जाय पारे गोटिए वाक्य रे सिना किछि शब्द गोटिए समतल बा समप्रस्तर एकत्रित हुए वाक्य बाहर गोटिए शब्द सही भाषा रे थिबा शब्द मानकर सहित अनेक प्रकार संपर्क रहिछि उदाहरण स्वरूप गोटिए शब्दर विपरीत बोधक शब्द मध्य रहिछि सेभली समार्थ शब्द मध्य रहिछि गोटिए उच्चारित शब्द सही भाषार सम व्याकरण पर्यायभुक्त अनुचारित शब्द मानकर अनुसंगरे निजर अर्थ को मध्य सूचाउ थाए उदाहरण स्वरूप वाक्यटीए निया जाऊ उदाहरण स्वरूप एग्जांपल यदि गोटे वाक्यटे नबा लोकटी कोन करजे गछ काटुजे लोकटी गछ काटुजे यदि उदाहरण नबा लोकटी गछ काटु ताहले ए लोकटी गछ काटुजी रो कोन अर्थ बाहर देखबा ना एई जो वाक्य रे थिबा शब्द तीनोटी रो क्रमिक संपर्क रहछि गोटे होछि लोकटी गछ काटुछि हला पेज नंबर होछि 7 रो लास्ट उदाहरण स्वरूप गोटे वाक्य जे नेले लोकटी गछ काटुछि तीनटा वर्ड अछि इथे तो तीनटा वर्ड को हम देखबा एथरे कोन तारा गोटे अर्थ बाहर छि देखबा ए वाक्य रे थिबा शब्द तीनोटी रो क्रमिक संपर्क रहिछि पेज नंबर 8 ता छडा ए तीनोटी जो लोकटी गछ काटुछि जो तीनोटी शब्द होइछि जो हमें पढिले ए तीनोटी शब्दर वाक्य बाहर थिबा अन्य शब्द मानक सहित मध्य संपर्क रहिछि कोन ना समग्र वाक्यटी जो लोकटी गछ काटुछि ए जो समग्र वाक्यटी उच्चारित हेले
थिबा जो उच्चारित हेले समग्र वाक्यटी उच्चारित हेले एथिरे थिबा जो गच्छ शब्दटी अछि पूर्व जे आमे गच्छ शब्द उच्चारण कर तार विषय जानिथिले जो गच्छ शब्दटी अछि जे गच्छ पछ अर्थ बुझाउ नाही ଏହା सुनिश्चित तेणु आंशिक भाव में पछ न होइथिबा हेतु गच्छ तार ନିଜସ୍ୱ अर्थ प्रकाश करछि बोली कहा जाय पारे हला गच्छ पछ बुझी पारे नै समग्र बाक्य लोकटी गच्छ काटुची लोकटे केबे पछ काटिया कथा आमे बुझी परिबा कि सेमे न तो लोकटी गच्छ काटुची तो एथिरे गच्छ शब्दटी जे पछ अर्थ बुझा एटा गच्छर पछ अर्थ बुझाउ नाही ଏହା ଆମେ ଜାଣିगले କାରଣ ଗଛକୁ ହିଁ କାଟୁଛି ଲୋକଟା ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପଛ ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଗଛ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ହେଲା ତେଣୁ ପଛ ଓ ଗଛ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଏଠି ସମର୍ଥ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ପଛ ଆଉ ଗଛ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛି ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ସସୁଅର ଆସୋସିଏଟିଭ বা ଭର୍ଟିକାଲ ରିଲେସନ বা ଉଲମ୍ବାପିକ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଉଦାହରଣ ତାପରେ ସସୁଅର ଭାଷାରେ ଐତିହାସିକ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସସୁରଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ ଗଠନବାଦୀ ଏବଂ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୃତ ଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରୋଲ ବିବାହୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନୋମ ଚମିସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ସସୁରଙ୍କର ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପଦ୍ଧତି ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ ସସୁରଙ୍କର ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କୁପଦ୍ଧତିର ଭାଷାର ଏକ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପାରୋଲ ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ପାରୋଲ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାର ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ଯେମିତି ଚେସ୍ ଖେଳର ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଟା ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେସ୍ ଖେଳରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିୟମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚେସ୍ ଖେଳଟି ଯୋଉ ଅଛି ଚେସ୍ ଖେଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଖେଳିଲା ପରେ ସେ ନିୟମର ବାସ୍ତବ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଥାଏ ଚେସ୍ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୁହେ ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ନିୟମ ଓ ସେ ନିୟମର ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୁଇଟି ସମାନ କଥା ନୁହେଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷାର ନିୟମ ସମୂହ ତାହା ପାରୋଲ ବା ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ସସୁରଙ୍କର ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମିଥ ଆଦିର ଅନୁଶୀଳନ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡେରିଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବେ ସସୁରଙ୍କର ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମିଥ ଆଦିର ଅନୁଶୀଳନ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଡେରିଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଅଛି ସଂରଚନା ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ରଚନା ବା ଭାଷାର ଗଠନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୟ ଅନେକ ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂରଚନା ବା ଗଠନ ତେଣୁ ଗଠନ ଧର୍ମ ବା ଗାଠନିକତାର ଆକଳନ ଅବବୟରେ ଅବୟବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଏକ ଧାରଣା ସଂରଚନାବାଦର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ ଆପାତତଃ ଯୌକ୍ତିକ ମନେ ହେଉଥିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଡେରିଡା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂରଚନା ତାହା କବିତାଟିଏ ହେଉ ବା କଲମଟିଏ ହେଉ ଗୋଟିଏ ସଂରଚନା ଗୋଟେ ମାନେ କବିତାଟେ ହେଉ ବା କଲମଟେ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଂରଚନାର ସାମଗ୍ରିକତାର ଅବବୋଧ ହୋଇ ଅଂଶବିଶେଷର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ এই ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା
गोटे संरचनावाद सामग्रिकतार अवबोध होई अंशविशेषर प्रयोजनीयता बा गुरुत्व को सामना को आने और उपादान मानकर पारस्पर्य संपर्क अर्थपूर्ण करिथाए। गोटे कलमर अंशविशेष होइतिबारु गोटे कलम रे कोन रहउची ना कैप रहउची, रिफिल रहउची, स्प्रिंग रहउची आदि अर्थपूर्ण तार आवश्यक जहाँ जहाँ ताहे अछि। गोटे कलम अंशविशेष रे कोन अंश कलम होची गोटे अंशविशेष सेथिरे कोन कोन सब रहउची कैप रहउची, रिफिल रहउची, स्प्रिंग रहउची ए सब जिंस तार आवश्यक जिंस सब रहउची हला आदि सब अर्थपूर्ण हुए थाए माने अर्थ एटा पूरा ए सब जा रही तार अर्थपूर्ण हुए थाए। तो जो कलम उद्देश्य बा लक्ष्य जानी आमे यही अंश विशेषर पारस्परिक सांगठनिक व्यवस्था आलोचना कर पार बुझी पाले ना आधरे कह दे बोल एटा सुन खाली एटा पढी देला अपन मन जे कि लॉजिक बुझंतो ठीक न बुझी मंडलन कर दो जे अपन कर दंदु देखंदु कोठे पढे हां गोटे संरचना कोन ना गोटे संरचना माने गोटे कविता हो किमा गोटे कलम हो। तो ये जो गोटे संरचना एक सांगठनिक पद्धति उपरे यह आश्रित होता है। ये जो सांगठनिक पद्धति आमे जो सांगठनिक पद्धति हला बेले आमे केमिति जानिबा ना तार जानियारे सिंपल लॉजिक होची गोटे संरचनार सामग्रिकतार अवबोध ही अंशविशेषर प्रयोजनीयता बा गुरुत्व को गोटे संरचनार सामग्रिकतार अवबोध ही तार अंशविशेषर प्रयोजनीयता जोटा तार प्रयोजन अछि बा तार जहा गुरुत्व अछि ताहा ही तार सामना को साणे एवं उपादान मानकर पारस्पर संपर्क मध्य से अर्थपूर्ण करिथाए। जेमिति धरिबा गोटे कलम बेले ताहले सेरा कोन कर तार अंशविशेष गोटे कलम हो जे तार अंशविशेष माने गोटे माने सब जिंस ये हेगी सेटा गोटे हम कलम बेली कहले सब जिंस तार अंश माने तार सब माने अंशविशेष सब जहा सब पार्ट सब मिसिला परे ताको हमें कलम बेली कहले। तो ये जो गोटे कलम अंशविशेष होइतिबारु ता भितरे कोन कोन अंश गुडी अछि कैप अछि, रिफिल अछि, स्प्रिंग अछि ए सब तार अर्थपूर्ण सब होइछि। तो ये जो कलमर उद्देश्य आ लक्ष्य जानिथिबो कलम निजे तार उद्देश्य जानि तो लक्ष्य मते जानिथिबा हेतु निर्जीव वस्तु किंतु आमे एटा माने बुझिया एग्जांपल कलमर उद्देश्य आ लक्ष्य जानिथिबारु आमे जानछे कलमर उद्देश्य पेन नामे कलमर उद्देश्य कोन माने तार कलमर उद्देश्य आमे कोन अंडरलाइन करबा लेखा लिख करबा सब जिंस आमे जानछे। तो एथिरे एही अंश विशेषरा पारस्परिक गाठनिक व्यवस्था मध्य आलोचना करि पारे समग्र को जानिथिबारु उपादान मानकर संसर्ग मध्य अर्थपूर्ण हुए। एही जानिबा बा प्राग ज्ञानटी ही गठन पद्धति बा संरचना व्यवस्था को समालोचना करबार एक सुरक्षित भित्ति बा केंद्र। एही प्राग ज्ञान ही गठन नियंत्रक और पारस्पर्यर नियामक अटे। हला तापरे साहित्य समालोचना मध्य आमे प्रथमे गोटिया लेखारे आनुमानिक सामग्रिक अर्थटिए मध्य नै थाउ सही अर्थ को कुहायला भली सुहायला भली उपादान मानकर प्रासंगिकता मध्य विशेष मूल्य दे थाउ जे उपादान गुटिक सेतरे सहाय्य करे नाही से गुटिक अप्रासंगिक मन करी आग्रह मध्य करिथाउ। तेणु गोटिए कलाकृतिर गठन धर्म आलोचना करबा पई आमे प्रथमे गठन बाहरे गोटिए भित्ति बा केंद्र तैयार करू सही केंद्र को केंद्रर मान्यता देबा पई उपादान मानक स्थिति सहंतर मध्य पर्यालोचना करिथाउ। जो आनुमानिक प्राग ज्ञान को नहीं पाठक अर्थर उपस्थापना करिथाए ताहा पाठकर आपणर इतिहास तथा समकालीन बौद्धिक परिवेश परवर्ती नुहे कि तेणु सही प्राग ज्ञान स्वतः सिद्ध बा स्वीकार्य केंद्र रूपे मध्य ग्रहण करने जो संरचनावादी साहित्य समालोचना करा जायथाए ताहा निरपेक्ष और विज्ञान सम्मत हेबा किपरि डेरिटांकर मतरे पाठक बा आलोचक निजर अजानतरे केंद्रटी तैयारी करी सही केंद्रर प्ररचनारे संरचनार पद्धति उद्घाटन करिबार मध्य लागिथाए किंतु तार मने हुए जे से कलाकृति बा रचना भितर ही सही गठन गुटिक और सेमानकर गाठनिक सूत्र मध्य आविष्कार करिछि। संरचनावादी तरे एही केंद्र संपर्क थिबा निरवता को डेरिटा प्रश्न करथिले एवं संरचित व्यवस्था जोटा के सिस्टम अछि सेमानकर केंद्र रे संभाव्य स्थानांतरीकरण विषय मध्य आशा प्रकाश करथिले। केवल संरचनावादी तत्व कहीं समस्त प्रकार मतवाद प्रति डेरिटांकर विघटन एक आह्वान थिला
प्रतिटी विधि व्यवस्थार केन्द्र बा भित्ति को प्रश्न करने विघटन मूल मंत्र। डेरिडा विघटन कौन से संज्ञा देवा पसंद करना कारण संज्ञा निर्धारण में जो प्रक्रिया निहित ताहार विघटन एक दार्शनिक दृष्टिकोण बौद्धिक बा राजनीतिक भंगा किंबा साधारण अर्थरे एक प्रकार गठन शैली बोली कहुपे। विघटन विघटन परिप्रेक्षी डेरिडा दार्शनिक दृष्टिकोण अवतरण कर मतरे पारंपरिक दार्शनिक जुक्ति और परिभाषा परस्पर विरोधाभास बा उच्च नीच विचार श्रेणी सोपान विद्यमान। यह भाषार आलंकारिक प्रयोग भितर लुकायित हो रही है। भाषार गठन शैली बड़ स्थान विभाजन बा विरोधाभास को जुक्ति को सठिक बोली प्रवर्ताइबार सहायक हुए किंतु प्रकृत पक्षरे से समान भाषा शैली सान को बड़ बा नीच को उच्च श्रेणी मान्यता देवार सक्षम। अन्य भाषा कहले जो आलंकारिकता गोटे जुक्ति सौध को कौन से गोटे धारणार सपक्ष तोली धरता है से आलंकारिकता से ही धारणार विपक्ष में उत्तोलित हो पारे। तापरे पेज नंबर 10 देखो संरचनावादी मतवाद कौन अच्छे देखा। यही प्रसंग रे भाषा विषयक संरचनावादी सिद्धांत गुरुत्वपूर्ण। संरचनावादी मानकर मतरे मनुष्य भाषा आहरण और चिंतन जुग्म विरोधर धारणा उपरे पर्यवेक्षित दुईटी परस्पर विरोधी धारणा भितर विरोध को आश्रा करी गोटे जुक्ति बा आदर्शर उत्पत्ति होता है। यह हल बा जोड़ा डुएल जुटुसु शब्द को नहीं गोटे राजनीतिक आदर्श बा निर्मित हो पारे। उदाहरण जुक्ति आदर्श उत्पत्ति हाँ उदाहरण स्वरूप धला और कला धला कला विरोधी जुग्म यही विरोध कला को उच्च कला को नीच सोपान पर्यायभुक्त करता है। पुंजी करी गोरा लोक माने कला लोक शासन करथिले। उपनिवेशवाद आदर्श प्रतिष्ठा करथिले। राजनीति धला कला जमिति एक धारणा जोड़ी सही भली दर्शन शास्त्र ईश्वर आ मनुष्य क्षणिक शाश्वत एवं मनस्तत्व फ्रॉयडर अवचेतन अचेतन भली धारणा जुग्म अटे। एही भली प्रति जुग्म भितरे थिबा विरोध एक उच्च आ नीच विभेद जरिया आम जीवन चर्या को प्रभावित करे। डेरिडा मतरे यही विभेद एक भ्रांति धला और कला भितर धला उच्च बोली किछि निहितार्थ नाही। यही उच्चासन रे कला को भी बसाई हेबो पुनि धला उच्चासन योग्य बोली कहबा जेमिति भित्तिहीन कला भी उच्चासन योग्य कहबा सही बोली भित्तिहीन। तेबे चिंता राज्य रे धारणा संपर्कित गतानुगतित श्रेणी सोपान को प्रतिकूल गति रे विन्यस्त करबा डेरिडांकर प्रतिविन्यास बा विघटनर एक मुख्य दिग। उदाहरण यदि देखिबा उदाहरण दार्शनिक निश्चय कर कारण तत्व र विघटन एटारे तात्पर्यपूर्ण। आम दैनंदिन जीवन में गोटे घटना अन्य एक घटनार कारण हुए कारणरू कार्य संगठित होता है। कारण आ परिमाण भितर कारण होती प्राथमिक यह परिमाण समय पूर्ववर्ती और परिमाणर उत्स होता है किंतु निश्चय कारण आ परिमाण जो अच्छी आगो क्रमान्वयता को उलटाइबार से सक्षम होइचंती। जने जंत्रणा अनुभव करिबा परे आविष्कार कला जे गोटे कंटा ही जंत्रणार कारण। तेबे एही जो आविष्कार जंत्रणार अनुभव परवर्ती काल यह घटिला। परिणामटी कारण आविष्कार कारण हला परिमाणटी कारण आविष्कार कारण हला नहीं कि अनुभूतिगत सत्य होची फल बा परिणाम घटला परे कारणटी परिकल्पित बा उद्घटित हुई। कारण परिमाणर क्रमिकतारे विपरीत आचरण जरिया भी कारण तत्वर अवबोध संभव। कारणरू परिमाणर स्थान एवं परिमाण को कारण स्थान में स्थापित करी अर्थात मुख्य को गौण और गौण को मुख्य स्थान में खंजी कारण तत्वर विघटन करा जाय पारे। कंटा और जंत्रणा भितर कंटा ही जंत्रणार उत्स होता है, जंत्रणा कंटार उत्स नुहे। तथापि ये सब उदाहरण गुड माइंड रखु आगो सब जिन क्लियर हो।
ତେବେ ଏ ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉତ୍ସ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିଲା ଏବଂ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ବିଭେଦ ହିସାବକୁ ଅକାଟ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କହିବାରେ ମାନ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଧାରଣ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ଡେରିଡା ନିସ୍ସେଙ୍କ ପରି ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସସୁଅରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଟି ଧାରଣା ଯୁଗ୍ମ ଯଥା ଲାଙ୍ଗ, ପାରଲ ଆଉ ସମକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ କଥନ ଲେଖନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ବିଭେଦକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡେରିଡା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟତା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ଗୌଣତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଡେରିଡା ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ଓଲଟାଇ ଦେଖିଥିବା ସୋପାନକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଓଲଟାଇବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏହି ନିରନ୍ତର ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ସେ ଆମର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଘଟନବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏହି ବିତର୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଧାରଣା ଯୁଗ୍ମର ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମିକତାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା ଗୌଣ ବୋଲି ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାରର ବିଘଟନ କରି ସେମାନେ ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା। ଡେରିଡାଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରଚନା ଭିତରେ କୌଣସି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ସମାଲୋଚନା ପଛଧାଡ଼ିର କିମ୍ବା ତାର ଓଲଟା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବିବା ଏକ ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସସୁଅରଙ୍କର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲାଙ୍ଗକୁ ପାରଲ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସସୁଅରଙ୍କର ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳର ଭାଷାର ସାର୍ବିକ ବା ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି। ସସୁଅରଙ୍କର ମତରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବେ ଲାଙ୍ଗ କଣ? ସସୁଅରଙ୍କର ମତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳର ଭାଷାର ସାର୍ବିକ ବା ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ପାରଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମତରେ ପାରଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଐକିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ। ପାରଲ ବା ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବହୁ ଭିନ୍ନତାମୟ ହେତୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସସୁଅର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲାଙ୍ଗର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଭାଷାର ସୂଚିତ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟାକି ସୂଚକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର ଶେଷ କେଉଁଠି ତାହେଲେ? ଗଛ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଛ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଅଲଗା କାରଣ ଗ ଆଉ ପ ଅଲଗା କେବଳ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଗଛ ଆଉ ପଛ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗ ଆଉ ପ ବାକି ଛ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛ ଆଉ ମାଛ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହିପରି ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ତାର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଲାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାପକତା ସମଗ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାରଲର ବହୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଡେରିଡା ଲାଙ୍ଗ ଓ ପାରଲର ଶ୍ରେଣୀଗତ ବିଭାଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବିଘଟନ କରିଛନ୍ତି। ସସୁରଙ୍କର ଭାଷା ଆଲୋଚନାରେ ସୂଚକ ଓ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରୋଧକୁ ଡେରିଡା ବିଗଠିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସସୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଭାବ ଓ ଧାରଣା ଠାରୁ ଭିନ୍ନତା ଆହୁରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶବ୍ଦ ଏକ ଭାଷା ବା ବାଚନିକ ରୂପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚିତ ଭାବଟି ଏକ ଧାରଣା ଓ ସସୁରଙ୍କର ମତରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାବ ଜଗତ ବା ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଡେରିଡାଙ୍କର ମତରେ ଧାରଣା ସହିତ ସୂଚକର ଓ ସମୀକରଣର ସୂଚିତକୁ ଭାଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ତେବେ ସସୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦର ଧାରଣାର ଅନୁପନ୍ଥୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚକ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ନ ହୋଇ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବଳୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାଟି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସସୁରଙ୍କର ସୂଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିପ୍ରେତ ବୋଲି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଡେରିଡା ଏଇଠାରେ ସୂଚକ ଓ ସୂଚିତର ବୈଷମ୍ୟକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବେ ସସୁରଙ୍କର ସୂଚକ ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଆଉ ସୂଚିତ ଯୋଉଟା ଅର୍ଥର ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ
सठिक बा संगत मन हुए किंतु प्रायोगिक क्षेत्र में यार स्थिति नहीं बोली गोटे शब्द जो अर्थ प्रकटित करे ताहा मध्य अन्य शब्द मानकर समाहार होता है अभिधान रे गोटे शब्दर अर्थ खोजी अन्य शब्द मानकर पाखरे पहुंचवा परे आमे गोटे शब्दर अन्य शब्द मानक पाखक गति करू गोटे शब्द गोटे चूड़ांत अर्थ पाखरे पहुंचाई पारे नहीं कारण प्रतिटी शब्द अन्य शब्द पाखक आमको अनुप्रेरित करिथाए गोटे संकेत जोटा कि साइन संकेतर अर्थ पार्थक्य जरिया गठित होता है अर्थात संकेत सूचक शब्द बा सिग्निफायर अर्थ अन्य समस्त आकलन शब्द मान निजक पार्थक्य द्वारा निर्मित करता तेणु कौन संकेत अर्थटी संपूर्ण भाव में उपस्थित हुए नहीं मान थाए अन्य समस्त शब्द मानकर कड़े कड़े विक्षिप्त हो रहा बाध्य हुए शिखाटी धबधबला भली अर्थ बा भाव अधा अधा प्रकटित हुए पुणी अदृश्य हो जाए शेषहीन खोजा भितर संपूर्ण रूप धरा दिए ना अर्थ एठी डेरिडा एक नुआ शब्दर मध्य अर्थर लुचकाली खेल खेल दर्शाई फ्रेंच भाषा एक क्रियापद जार अर्थ होची पार्थक्य सूचाइबा तथा स्थगित रखिबा ताहाको सामान्य एकड़ सेकड़ करी से गोटी विशेष पद मध्य गढ़िथिले डिफरेंस जोटा कि डिफरा है गोटे शब्दर अर्थ अन्य शब्द ठारू तार पार्थक्य भितर गठित बा उत्पादित हुए तो अर्थ खोजा बेले केतेक पार्थक्य आम जानी सारी था किंतु आहरी अनेक पार्थक्य जाना बाकी थाए अथच से बाकी तकर काम केबे भी सरेनी कि चूड़ांत अर्थटी मिल पारे सॉरी तेणु पार्थक्य संबंध अर्थ पृथ्वीकरण प्रक्रिया दीर्घता जो स्थगित हो चली था पुणी भिन्न भिन्न प्रसंग अर्थात भिन्न भिन्न शब्द मेल गोटे निर्दिष्ट शब्दर अर्थ भी बदली चली था गोटे शब्द तार निजर इतिहास को सब बोही चली था विभिन्न समय शब्दटी विभिन्न अर्थर द्योतक हुए स्तरीभूत अर्थ मान चिन्ह जोटा कि ड्रेस बहन कर शब्दर गढ़ण होता है तेणु केउ प्रसंग शब्दटी केउ चिन्ह बा चिन्ह मान प्रकटित करुचे ताहा कहवा एठी कष्टकर हुए तो शब्दटी अर्थ प्रकटित करने बदल संभाव्य अर्थर गोटे निरंतर दोलन रे परिणत हुए बा विपरीत अर्थ बा असंगतिर द्योतक हुए यही दृष्टि भाषार आकलन जटिल और प्रवंचनापूर्ण तत्सहित भाषा संज्ञा सापेक्ष नुहे उत्तर संरचनावादी माने यही दृष्टि भाषा साहित्य और रचना टेक्स्ट को ग्रहण करिसेंती डेरिडांकर विघटनवादी चिंतन पाश्चात्य दर्शन केतेक स्वीकृति भित्तिक गल्प बा भ्रमात्मक बोली विवेचना कर सबु जौतिकतार ऊर्ध्वर थिबा केतेक धारणा यथा ईश्वर चिर वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति और आदि भौतिक ज्ञान को भित्ति करी भाषार अर्थ प्रकरण पाश्चात्य परंपरार अंशविशेष यही दृष्टि पाश्चात्य संस्कृति को डेरिडा लोगोसेंट्रिक बा लोगाकेन्द्रिक बोली मध्य कहते लोगोस अर्थ उपस्थिति बा चिर विद्यमान ईश्वर विश्वर नियामक विधि आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ रे यार अर्थ होची शब्द जिसु को भगवत शब्द बा नियमर अवतार रूपे मध्य ग्रहण करा जायछि ग्रीक दर्शन रे लोगोस हैला महाजागतिक श्रृंखलार नीति नियम यही महाजागतिक श्रृंखला मानवीय भाषार ऊर्ध्वर रही भाषा को अर्थपूर्ण करुछि शब्दर पृष्ठभूमि रे अदृश्य भाव अर्थ बा भाव लुचि रही मानसिक स्तर मौखिक स्तर को भाषा जरिए यही अर्थर प्रकाश संभव होछि भाषार अर्थपूर्णतार केन्द्र बा भित्ति भाषार बाह्य देश रे अदृश्य रूपे मध्य विद्यमान यही विद्यमानता को डेरिडा अस्वीकार कर मतरे यही दार्शनिक सिद्धांत भाषा संबद्ध समस्त आध्यात्म भौतिकता सत्य मनुष्यकृत और मनुष्यर भाषा द्वारा निर्मित अर्थात अर्थ भाषा को तैयारी करे नाही अर्थ भाषा को तैयारी नाही भाषा अर्थ को निर्माण करिछि एठरे दार्शनिक प्लाटोंकर मतरे मध्य आलोचना करा जाय पारे कोन ना प्लाटोंकर दर्शन रे उपरोक्त दिव्यमानता जोटा कि दिव्य चेतना थिबा सत्यर दिव्यमानतार धारणा मध्य एठे तात्पर्यपूर्ण आसीबो प्लाटोंकर मतरे कलाकार स्थिति सत्य बा दिव्य चेतना ठारू तीनटी सोपान निम्न मध्य दूर रे धरा जो जने चित्रशिल्पी गोटे टेबुल चित्रटीए आंकुछंती एही टेबुल रे नमूना पा कारीगर बा बढ़ई द्वारा निर्मित एक टेबुल रु नहीं बढ़ई गढ़ी टेबुल टी दिव्य चेतना टेबुल अमूर्त धारण एक मूर्त अनुकरण करुछि अर्थात प्रतिटी वस्तु एक अदृश्य विद्य रूप रही आदि सत्यटी है यही विद्य रूप द्वितीय स्तर में तार प्रतिरूप है समग्र जागतिक रूप बा आकार
तृतीय स्थल रे शिल्पी बा कलाकार कृति जहाँ जागतिक रूप से प्रतिरूप यही सिद्धांत को जब आम आधार करवा ताहले यही सिद्धांत को आधार कर प्लाटो ताकर लिखित रिपब्लिक रु कलाकार और शिल्पी मानक बहिष्कृत करथिले किंतु डेरिडा पाई दिव्य चेतना बा दिव्य मानता ର ପ୍ରାଥମିକତା ଏକ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ ଓ ସୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥାଏ ପାରସ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଧାରଣାର ଚିହ୍ନଟ ଠିକ ଭାଷାରେ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ଭଳି ପୁଣି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତିରେକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କାରଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଭାବ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଶାବ୍ଦିକ ଦୁନିଆ ବାହାରେ କୌଣସି ସୂଚିତ ଭାବ ଓ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ବିଘଟନବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ ଏଠାରେ ଅଛି ନା ଏହି ବିଘଟନବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢି ଆସିଥିବା ଗତାନୁଗତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀୟମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଟରେ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ନାତୀତ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ ଶୋଷଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଭାଷା ଥିଲା ପ୍ରତୀୟମାନ ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଯୋଗ ଶଶୁର ଲିଖନ ସ୍ତରରେ କଥନ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଲେଖନରୁ କଥନର ଲିପିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ କଥିତ ଭାଷାରେ ପଦ୍ଧତି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ଲିଖିତ ଭାଷାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ସୁବିଧାଜନକ ଡେରିଡା କଥନ ଓ ଲିଖନ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭେଦ ଓ କଥନର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି କଥନକୁ ଲିଖନ ଠାରୁ ବଡ ହିସାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ସେସବୁକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ବକ୍ତା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖାରେ ସେ ଗୁଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏନି ଲେଖାଟିଏ ଲେଖକ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅବୟବକୁ ପାଠକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପଢେ ଓ ବୁଝେ କିନ୍ତୁ କଥନରେ ବା କହିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଲେଖାର ଧାଡି ଧାଡି ଶବ୍ଦ ଭଳି କଥାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ ଅର୍ଥରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହା ଭାବିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଡେରିଡାଙ୍କର ମତରେ ଶ୍ରୁତ ଶବ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପଠିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭଳି ପାରସ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି କଥନ ଓ ଲିଖନ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦି କଥନ ଓ ଲିଖନ ଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତି ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପଦ୍ଧତି ଏକ ବୃହତ ସାଧାରଣ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଚିକ ଲିଖନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଲିଖନ ସଦୃଶ ତ ଡେରିଡାଙ୍କର ମତରେ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେହି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ସତ୍ୟ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁ ଏକ ନିର୍ଯାସ ବା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଯୀଶୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା 2000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଗତିଶୀଳ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତୀକ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଜଡିତ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରେ ଅପସାରିତ ବା ଅବହେଳିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଅଦର ବା ଅପର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀ ଅପସାରିତ ଅବହେଳିତ ତଥା ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ବହିଷ୍କୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଇହୁଦୀ ମୁସଲମାନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ବହିଷ୍କୃତ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ସବୁବେଳେ ବୈପରୀତ୍ୟର ଦ୍ୱିବିଧା ତିଆରି କରି ଚାଲିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପରିଧି ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସୀନ ହୁଏ ସେ ଦ୍ୱିବିଧାର ଏହି ଲୀଳାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବାକୁ ହିମୀକୃତ ବା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ କଳା ଆଉ ଧଳା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଧାରଣା ଯୁଗ୍ମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦିବାକୁ ମଣିଷ ମନରେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜର ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ପ୍ରତୀକ ଉପଚାର ନିଷେଧ ସମସ୍ତରେ ଏହି ଧାରଣା ଯୁଗ୍ମର ପ୍ରତିପକ୍ଷତାରେ ଖେଳିବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ବା ଧାରଣାଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଏ ତାହା ଯେମିତି ବାସ୍ତବତାର କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ତାର ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ କ୍ଷମତାସୀନର ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବତା ଭାଷା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ବିଜଡିତ ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟାର୍ଥବୋଧକ ଚିତ୍ର ଭଳି ଗଠନକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡେରିଡାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲେଖାର ପଠନ ପାଇଁ ବିଘଟନକୁ ଏକ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ଆମେରିକାର ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଡିମ୍ୟାନ ବାରବାର ଜନସନ ଓ ଜେ ହିଲ୍ସ ମିଲର ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ପଲ୍ଡିମ୍ୟାନ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଘଟନ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଉପାଦାନ ଓ ଆଳଙ୍କରିକ ଉପାଦାନ କିପରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମତରେ ବ୍ୟାକରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବା ଯୁକ୍ତି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳଙ୍କାରର ଅସ୍ଥିର ଦ୍ୟୋତନ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବାରବାର
बारा जॉनसन विघटन सूत्र को केवल साहित्य कृतर आलोचना मध्ये प्रयोग न करी समालोचना क्षेत्र मध्ये प्रयोग करथिले। एकदा जेनेभा समालोचना गोष्ठी द्वारा व्यवहृत चेतना भित्तिक समालोचना र अमेरिका प्रतिनिधि जे हिल्स मिलर परवर्ती समय डेरिडाଙ୍କର विघटन को ग्रहण करी गल्प साहित्य और गद्य साहित्य अध्ययन मध्ये करथिले। डेरिडाଙ୍କର विघटन उत्तर संरचना मध्ये मुख्य उपादान थिला। पारंपरिक विश्वास और चिंताधारा भित्तिक विरोध करी जो संशयर बीज बपन करथिले डेरिडा ताहा सांप्रतिक समालोचना प्रतिनिधि मोडरे अंकुरित और परिवर्धित मार्क्सवादी और नारीवादी नव ऐतिहासिकवादी तथा पाठक प्रक्रियार अनपंथी तत्व मानकर डेरिडाଙ୍କର सूत्र गुड़िक अपरिहार्य होई पड़िछि। आ 2 मिनिट अछि हला एथला सब पाठ विघटनवादी चिंतनर प्रासंगिकता हला एथर किछि तो सते इंपोर्टेंट किछि पाइनी खाली स्टोरी अछि। तापरे प्रश्न आसिला भाषा संपर्क रे सस्यरंकर सिद्धांत कोन अछि हम जानि परिबा जानले लिखि परिबा दीर्घ माने संक्षिप्त शॉर्ट क्वेश्चन गुडी सब मानववादी समालोचना कहा को जे लिखि परिबा उत्तर संरचना मध्ये मुख्य उपादान गुडी लिखि परिबा डेरिडा विघटन को साहित्य रे किपरि एटा बे जे पढले बे विघटन डेरिडा विघटन साहित्य रे किपरि व्यवहार करछथि या करबा लाई चाहते से मध्ये लिखि परिबा दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन आसी जिवार गठन और विघटन भितर पार्थक्य लिखिबा डेरिडाଙ୍କର विघटनवादर संपर्क सविशेष आलोचना करा लॉन्ग क्वेश्चन लोगोस संपर्क विषयता बे जे पढले पूर्वरु लिखि परिबा बेंचस्तर साहित्य समालोचना तत्पर परिचय दे परिबा हला तापरे काली आलोचना करिया पाठ प्रक्रिया तत्व नेक्स्ट सॉरी आज बात ही था ना कर किछ कम कवर अछि कबर अंदे।